Good morning, students. I'm your Rao sir, Innovative Institute of Biology, Lathur. We are discussing the lesson cell division. उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया है. कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं मटेरियल में अगर मिस हो गया तो आप लोग मुझे वो उसका फोटो भेजो, नहीं तो मैसेज टाइप करो. आई विल गिव यू द आंसर इंस्टेंटली. चलो हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेडली डेंजरस द सेल साइकिल regulation of cell cycle. So outside the cell, जब कभी सेल एक लिविंग सेल होता है, a living cell will have different components. मैं उतना दूर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लिविंग सेल का सारी डिटेल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे. This is what is not the cell wall, this is the plasma membrane. Then this is the living cell having plasma membrane. On this plasma membrane they do have different types of receptors. receptors ऐसा रहता है कि बाहर का जो भी चीज़ होता है उनको पता होता है. These are many receptors are located on the cell membrane. So ये सेल का कुछ मैसेज मिलते हैं. अगर मिलेगा the receptors will become immediately active in order to do certain things inside the cell itself. They will inform the nucleus and the genetic material so as to take certain activities. So एक सेल अगर सेल डिवीजन नहीं दिखा रहे, उसका रीजन्स हमने लास्ट few classes में बताया था. So in the few classes we have been discussed about हो जाएगा वो परमानेंटली डिवाइड नहीं होगा, परमानेंटली G0 में अरेस्ट हो गया. So permanently they are arrested in G0 stage. So G0 में कई दिन बैठने के बाद अगर मौका मिला, so that will go into the S phase and again further division takes place. So the senescent cells will never enter into the cell cycle, but quiescent cells may enter into the cell cycle. Senescent cells मतलब डेथ वाला नहीं है, कई परमानेंट सेल्स भी रहते हैं. परमानेंट सेल्स मतलब नर्व सेल, कार्डियक सेल. सो ये वाला सेल्स कभी डिवीजन नहीं दिखाते. बट स्किन सेल्स एंड लिवर सेल्स दे विल शो सर्टेन काइंड ऑफ डिविजन्स टू रिप्लेस द ओल्डर cells. So you are observing now the cell membrane, lot of cascades are there, receptors. What do you call it as receptors? Inside the cell we have our genetic material DNA is there. So बहुत सारे DNA न्यूक्लियस में रहते हैं. For my convenience I am writing this DNA here. So ये DNA मेरा कन्वीनियंट के लिए ऐसा बाहर दिखा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि DNA ऐसा सीधा बाहर बैठते हैं, वो क्रोमैटिन के रूप में न्यूक्लियस के अंदर बैठते हैं. सो इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस ही बता रहा हूँ मैंने. सो लेट अस वी हैव ए सर्कल ऑफ दिस वन मोर न्यूक्लियस की बाउंड्री ले लेते हैं हम. सो इन ऑर्डर टू कंफर्म द आउटर टू बैक्युलर लेयर्स आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स. सो अगर बाहर से कुछ रिसेप्टर्स कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर्स. व्हाट डू यू कॉल इट एज? ग्रोथ फैक्टर. सो ये मान लीजिए ये ग्रोथ फैक्टर हैं. सो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाले ग्रोथ फैक्टर्स हैं. नाउ दिस ग्रोथ फैक्टर्स विल कम एंड अटैच द रिसेप्टर्स, मगर अगर ये सेल डिवीजन होना है, ये रिसेप्टर के ऊपर वो ग्रोथ फैक्टर बैठते हैं. सो देयर इज a signal to the cell, so there should be division inside the cell. So these are growth factors, insulin like growth factor बोला. So बहुत सारे growth factors है. There are about 11 types of growth factors are there which will induce. जैसा growth factor अंदर आया, when the growth factors enters inside the plasma membrane with the help of the receptors. So now these growth factors by utilizing energy in the form of GTP is converted into GDP. Now this growth factor is get activated. Now this growth factor is now get activated.
These activated growth factors influence the synthesis of certain proteins essentially required. अगर हम यहाँ ये जगह पे देखते हैं, एक सेट ऑफ जीन्स आर देयर सिंथेसाइज साइक्लिन्स, और यहाँ और एक सेट ऑफ जीन्स है देयर, मतलब कई जीन्स, यहाँ और एक सेट ऑफ जीन्स आर देयर जो सिंथेसिस करेगा साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, ऐसा जीन्स सेट्स हैं यहाँ. So set of genes which synthesizes proteins called as cyclins, and certain genes can also synthesize a set of genes, certain can also synthesize cyclin dependent kinase. याद रखना. So these growth factors will first stimulate the growth factors were first stimulated by GTP. Now it will turn into transcriptional factor. क्या बोले हमने? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हो गया. सो ग्रोथ फैक्टर ऑफ गेटिंग एक्टिवेटेड, फॉस्फोरिलेशन बोले हम, ये एक्टिविटी को क्या बोले? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर होने के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू TF मतलब transcriptional factor. This transcriptional factor induce the genes so as to synthesize certain cyclins, certain proteins. What do you call it as? Cyclins. ये कई जीनों के ऊपर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हो गया. सो इसकी वजह से साइक्लिन्स सिंथेसिस हुआ. ये वाला हो गया cyclin A, then this is cyclin D, and another group of genes can produce cyclin B, and this may produce cyclin A, D, B, and then this is cyclin C. ऐसा gene synthesis हो गया. And some set of genes they produce cyclin dependent kinase CDK. It is a enzyme, it is a basically protein. So cyclins and cyclin dependent kinase. So growth factors will influence the synthesis of growth factors. After getting phosphorylation, they will become transforming transcriptional factor. This transcriptional factor being as an activator, it will influence the synthesis of cyclin D, cyclin A, cyclin B, and cyclin C, and cyclin E also. ऐसा 7 different types of cyclins are there. So cyclin की बात करते हैं, they are synthesized at the time of requirement and immediately degraded after its requirement. Synthesized at the time of requirement and get degraded. ठीक है. सो अगर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की बात करते हैं, सो डिग्रेड नहीं होता है सेल में, दे आर प्रेजेंट इन द सेल इन इनएक्टिव फॉर्म, in an inactive form. ठीक है. Cyclin and cyclin dependent kinase has a major role in controlling the cell division. यहाँ हम डिस्कस करना है, और एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ जीन्स है. दिस इज रेटिनोब्लास्टोमा जीन क्या सिंथेसिस करते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन सिंथेसिस करते, इसको बोले हम आरबी प्रोटीन, आरबीपी. ठीक है. आरबीपी is closely associated with a factor which is called as E2F.
जैसा आरबी प्रोटीन है, रेटिनोब्लास्टोम या प्रोटीन है, वो किसके साथ जुड़ी हुए हैं? E2F. E2F is an important activator of certain genes. जब तक वो आरबी प्रोटीन से जोड़े हुए तब तक वो काम नहीं करेगा। उसके मतलब आरबी प्रोटीन से, रेटिनोब्लास्टोम या जीन से वो E2F प्रोटीन डिसोसिएट होना है। मतलब जब तक ये दोनों जोड़ी हुआ थे, ये फैक्टर बाकी जीनों को नहीं मिलते। E2F जरूर होना है, बट किसके साथ जुड़े हुए हैं? आरबीपी, मतलब रेटिनोब्लास्टोमा जीन से जुड़े हुए हैं। अभी जो साइक्लिन्स बने, सो हमारे पास साइक्लिन ये है। दिस साइक्लिन इज एसोसिएटेड विथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस आपको यहां समझ में आ रही कि नहीं? मान लीजिए मैं लेता हूं इट इज साइक्लिन ये, किसकी वजह से? ग्रोथ फैक्टर की वजह से साइक्लिन ये एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK सिंथेसिस हुआ। ये दोनों जोड़ने के बाद दिस विल आल्सो गेट फॉस्फोरिलेटेड। फॉस्फोरिलेटेड मतलब ATP ना GTP यूज करके दिस विल बिकेम एक्टिव। सो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जब तक साइक्लिन के साथ जोड़ते नहीं तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब साइक्लिन ए नहीं तो कहीं ना कहीं साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन सी, साइक्लिन डी ऐसा जोड़े हुए तब फॉस्फोरिलेट हुए तभी तो एक्टिवेट हो गया। नाउ इट इज एक्टिवेटेड साइक्लिन प्लस CDK कॉम्प्लेक्स, एक्टिन एंड CDK कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स जाके साइक्लिन एंड CDK प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स जाके ये दोनों को सेपरेट करते हैं। मतलब इन इट हेल्प ऑफ दिस साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एसोसिएशन दे विल गो, यहां मैंने बोला CDK, यहां लिखता हूं, they will go and bind रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन प्लस E2F फैक्टर। जब ये साइक्लिन्स ऐसा जोड़ी हुए तभी तो क्या हो गया? ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो आरबीपी प्रोटीन सेपरेट हो गया और E2F सेपरेट हो गया। ठीक है, दिस इज आरबीपी, दिस इज E2F। ठीक है, तब ये E2F जाके ऐड होगा माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, और माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर को क्या बोले हम? MPF। तभी तो डिवीजन शुरू होता है। अभी क्लियर है कि नहीं? आर यू क्लियर आर नॉट? सो ये सब चीज याद रखना। पहले ग्रोथ फैक्टर आया, ग्रोथ फैक्टर फॉस्फोरिलेट हुआ, फॉस्फोरिलेटेड ग्रोथ फैक्टर हैज बिकम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ये वाला ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जाके कई जीनों को एक्टिवेट किया। ठीक है, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी, साइक्लिन सी ऐसे सिंथेसिस हुआ। उसके साथ साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस भी सिंथेसिस हुआ। सो बाद में सेल के अंदर क्या हुआ? साइक्लिन ए एंड CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दोनों मिलने के बाद याद रखना साइक्लिन हमेशा सेल पे नहीं रहते हैं। ठीक है, G1 फेज का कई साइक्लिन्स रहते हैं, साइक्लिन डी, वो G1 फेज होने के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, सो बट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हमेशा सेल में रहते हैं। सो जैसा ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट किया, जैसा साइक्लिन आया, साइक्लिन के साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अटैच हुआ, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स will disassociate RBP रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन प्लस E2F। सो E2F हमको होना है क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स से ये ऐसा सेपरेट हो गया, ये ऐसा सेपरेट हो गया। E2F फैक्टर मतलब डिवीजन की प्रमोटिंग फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर। सो माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर प्लस E2F now can initiate the division। so हमको फाइनली क्या होना? ये सब चीज क्यों पढ़ा रहे हम? E2F plus MPF, this complex is essentially required
this complex is essentially required for the proceeding of cell division. ठीक है, चलो हम ग्रोथ फैक्टर से ये E2F MPF फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बनने तक हम डिस्कस किया. अभी चलो हम देखते हैं. सो सेल के अंदर इफ ए सेल इज गोइंग डिवीजन, we do have cyclins are proteins. Cyclin dependent kinases are what? Cyclin dependent kinases are catalytic proteins, enzymatic activity है. So चलो हम देखते. So division की जगह पे क्या हो रहा है, actually what is happening in the division. This is the division. डिवीजन में हम पहले लेते हैं G1 फेज, वेरिएबल फेज. G1 फेज को हमने बोला वेरिएबल फेज. वेरिएबल फेज से G1 से सेल जाएगा नेक्स्ट सिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज होने के बाद G2 फेज होता है. G2 फेज की होने के बाद मेटाफेज M फेज होता है. M फेज में आपको ये क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. दिस इज कॉल्ड एज M फेज. ठीक है, पहले G1 से, G1 में क्या क्या होता है सार. सो G1 हमेशा हम सोचते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन मतलब कई प्रोटीन सेल साइकिल को बंद कर देते हैं. बंद करना भी जरूरत है क्योंकि अगर एक स्टेज से दूसरा स्टेज जा रहे हैं, तुम दूसरा स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं है, तेरे पास वो एक्टिविटी नहीं, तो तेरे पास वो इंफॉर्मेशन, वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स नहीं है, तुम नेक्स्ट स्टेज जाके क्या करेंगे तुम. इसलिए सो सेल साइकिल रेगुलेशन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. नाउ हम बात कर रहे हैं G1 में. सो G1 से S जाना कि नहीं जाना, G1 से S जाना कि नहीं जाना. पहले चेक पॉइंट ये है, कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, नहीं तो चेक पॉइंट बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज G1 S चेक पॉइंट. मतलब G1 से सेल अगर यस जाना है, G1 से सेल अगर यस जाना है, ठीक है. सो इफ द सेल इज सपोज टू बी एंटर्ड इनटू द यस. सो G1 कई क्वेश्चंस पूछते हैं सेल को, क्या प्रोटीन सिंथेसिस हुआ कि नहीं. प्रोटीन सिंथेसिस एस पेज में क्या होना, DNA पॉलीमरेज. एस पेज में क्या होना, RNA पॉलीमरेज. एस पेज के लिए क्या होना, हिस्टोन प्रोटीन्स. एस पेज के लिए क्या होना, जो होना है वो सब चीज रेडी है कि नहीं, और रिमार्क्स में टिक करते रहते हैं. सो G1 विल चेक ऑल दिस थिंग्स. ये चेक करने वाला है G1 में. कौन सा चेक करने वाला है, साइक्लिन डी. क्या बोले हम, साइक्लिन डी. इसके अंदर लिखते हैं हम साइक्लिन डी. साइक्लिन डी के साथ अटैच होना वाला है साइक्लिन डी डिपेंडेंट काइनेज, CDK. सो साइक्लिन डी इज अ साइक्लिन प्रोटीन. उसके साथ जोड़ने वाला काइनेज अलग है, और नेक्स्ट स्टेज से जोड़ने वाला काइनेज अलग है, और नेक्स्ट स्टेज अलग है. सो साइक्लिन डी प्लस CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दोनों मिलकर क्या चेक कर रहे बेटा, क्या चेक कर रहे, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ कि नहीं, DNA पॉलीमरेज तैयार है कि नहीं, हिस्टोन प्रोटीन्स तैयार है कि नहीं. क्योंकि सिंथेसिस में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन और न्यूक्लियोटाइड्स रेडी है कि नहीं, ये सब चीज फाइनल करके ओके 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 टिक करते हैं. सब चीज टिक कर रहे हैं, दे विल प्रमोट द नेक्स्ट स्टेज टू द सिंथेटिक फेज. इफ नॉट, कहीं ना कहीं एक जगह पे इंटू मिला, एक रॉन्ग मार्क, ये चीज नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली दिस सेल विल बी एंटर्ड इनटू ए स्टेज, you know very well
क्या होता है, वो स्टेज का नाम क्या बोल सकते हैं हम? अगर ये चीज नहीं हुआ, द सेल विल एंटर इनटू such a kind of state is called as G0. G0 में परमानेंटली रुक जा सकते हैं, G0 में हो सकता है परमानेंटली रुक जाएगा, नहीं तो जो चीज कंप्लीट करना है कंप्लीट करके और यस में जाने के लिए भी चांसेस है, दैट इज कॉल्ड एज चेक पॉइंट. सो जनरली हम डिस्कस नहीं करते, अगर क्वेश्चन दिया तो याद रखना पड़ेगा. यहां यस पेज में आएगा साइक्लिन ई. सो साइक्लिन ई विल सिर्फ चेक करते, साइक्लिन ई विल सिर्फ ऑब्जर्व करते कि डीएनए सिंथेसिस ठीक से हुआ कि नहीं. ठीक है, ये साइक्लिन ई का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो साइक्लिन ई. सो ये तो चेक पॉइंट नहीं बोलता मैंने, दूसरा चेक पॉइंट रहेगा यहां. सो वो चेक पॉइंट को बोलते हम G2M चेक पॉइंट. दूसरा चेक पॉइंट क्या है बेटा? G2M चेक पॉइंट. ठीक है, ठीक है. G2M चेक पॉइंट डिसाइड करने वाला क्या है? साइक्लिन ए सीडी के कॉम्प्लेक्स. इसमें लिखे हम साइक्लिन ए प्लस उसके साथ जोड़ने वाला है एंजाइम. वो एंजाइम क्या है? साइक्लिन ए डिपेंडेंट काइनेस CDK. ठीक है, ये G2 फेज में सेल क्या ऑब्जर्व करते, व्हाट द G2 फेज में क्या ऑब्जर्व करने के लिए चांसेस है? पहले पॉइंट, ये कहां से क्रॉस करके आया, कौन सी स्टेज क्रॉस करके आया बेटा बताओ? कौन सी स्टेज क्रॉस करके आ रहे? एस फेज क्रॉस करके आ रहे. एस फेज में क्या क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ. सो डीएनए रेप्लिकेशन में मिसमैच है क्या? मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 हाई कैपेसिटी है, बहुत जल्दी चले जाते हैं, कुछ एडेनाइन थायमिन का रिलेशन पता नहीं होता है. मिसमैच हुआ क्या? डैमेज हुआ क्या? डैमेज रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, डैमेज रिपेयर. और दूसरी बात है, जैसा सिंथेटिक फेज में चले गया, नहीं तो G2 फेज में चले गया, सेल रेडी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. पूरा जितना क्रोमैटिन है उतना क्रोमैटिन के अंदर डीएनए कंप्लीटली सिंथेसिस हुआ कि नहीं, कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ डीएनए. ठीक है, जो भी सिंथेसिस करना यही जगह पे सिंथेसिस करना. तुम एक बार डिवीजन पे गए तो कुछ सिंथेसिस कर नहीं सकते तुम, मिसमैच पेयरिंग. और देखते कुछ म्यूटेशंस है क्या, केमिकल म्यूटेशंस और पॉइंट म्यूटेशंस कुछ है क्या? कुछ म्यूटेशन रहेगा तो वो सेल बाद में फर्दर स्टेजेस क्रॉस कर नहीं पाते हैं. इसीलिए G2 फेज में साइक्लिन ए G2 एंड M चेक पॉइंट में साइक्लिन ए एंड CD के कॉम्प्लेक्स विल ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, मिसमैच पेयरिंग, डैमेज रिपेयर. और डीएनए के साथ डीएनए ऐसा फोल्डिंग्स हो रहे, और फोल्डिंग्स होने के टाइम में भी ठीक से फोल्डिंग हुआ कि नहीं, मतलब क्रोमैटिन फॉर्मेशन जो है ठीक से फोल्डिंग हुआ कि नहीं, ये सब चीज देखने वाला है G2 में चेक पॉइंट. मतलब एक सेल डिवीजन में जाने के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, वो सारी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट किया कि नहीं, वो चीज देख लेते हैं. सो लास्ट में आएगा आपको M फेज चेक पॉइंट. M फेज. सो कितना चेक पॉइंट्स हैं M फेज चेक पॉइंट्स में? साइक्लिन B. M फेज चेक पॉइंट में क्या आएगा? साइक्लिन B एंड CDK कॉम्प्लेक्स. सो M फेज चेक पॉइंट देखो बेटा, M फेज चेक पॉइंट में क्या क्या है? साइक्लिन B एंड CDK कॉम्प्लेक्स. सो प्रोफेज क्रॉस करके आ गया, G2 क्रॉस करके आ गया.
एम फेज में क्या चेक करना है, स्पिंडल फाइबर ठीक से काइनेटोकोर को अटैच हुआ कि नहीं, दूसरा सारी क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में आया कि नहीं. So coming of chromosomes to the midpart of the metaphase is called as congregation. Congregation is right or wrong, ये चेक करते हैं. ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन मिड प्लेट, क्योंकि सारी क्रोमोसोम गया, एक क्रोमोसोम वापस निकल गया, एक जगह पे रास्ता पे रुक गया. ऐसे रुक गया तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आप लोगों को मालूम है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग n+n कंडीशन, वो आएगा n+1 एंड n-1 काइजोम, ट्राइजोमी, नलिजोमी, ऐसा एबनॉर्मलिटीज होने के लिए चांसेस है. समझा कि नहीं. कॉन्ग्रेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम ठीक से हुआ कि नहीं. और दूसरा देखते हैं स्पिंडल अटैचमेंट, स्पिंडल अटैचमेंट ठीक से हुआ कि नहीं. स्पिंडल कहां अटैच होता है क्रोमोसोम को, काइनेटोकोर पे अटैच होता है. सो ये सब चीज देखते हैं. एम फेज चेक पॉइंट इन एसोसिएशन विद साइक्लिन बी एंड सीडीके कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन बी एंड सीडीके कॉम्प्लेक्स. सो इस जगह पे आपको क्या पता हो रहे. सो ये क्या बोले हम, ग्रोथ फैक्टर. मैं कहां से कहां तक लेके आ रहा हूं, देखिए, ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट किया, एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोरिलेट हुआ, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हुआ. ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या किया, कई साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन एफ, ऐसा साइक्लिन को सिंथेसिस किया. उसके साथ साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को भी सिंथेसिस किया. ठीक है. सो साइक्लिन्स, ये भी याद रखो, साइक्लिन, स्पेसिफिक साइक्लिन की कंसेंट्रेशन हम अगर बात करते, सो इसमें लिख देता हूं, साइक्लिन का, साइक्लिन ये सीडीके कॉम्प्लेक्स. सो G2 चेक पॉइंट बोले हम, G2M चेक पॉइंट, साइक्लिन ये एंड सीडीके, साइक्लिन ये प्लस सीडीके कॉम्प्लेक्स है, G2M चेक पॉइंट. ठीक है, यहां मैंने थोड़ा दिखाना सकता हूं. सो G1 में कौन सा प्रोटीन का, G1 में साइक्लिन डी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसके बाद साइक्लिन ए का, उसके बाद साइक्लिन ए का, उसके बाद साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. ये देखते रहो. अगर ऐसा लिया आपने ग्राफ, G1 यस, G2 एम फेज, मेटाफेज में देखते हैं. सो G1 में किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साइक्लिन डी का. जैसा सेल एस फेज में जा रही, साइक्लिन का कंसंट्रेशन गिर गया. सो ये वाला पीक किसका है, साइक्लिन डी, साइक्लिन डी. मतलब दूसरा यहां क्या होना, साइक्लिन ई. साइक्लिन ई का कंसंट्रेशन G1 में नहीं है, फिर भी कहां शुरू हुआ, सिंथेटिक फेज में पीक्स में चले गया, सिंथेटिक फेज में पीक्स में गया. किसका कंसंट्रेशन, साइक्लिन ई. दिस इज डी एंड दिस इज ई. सो तुरंत गिर गया G2 में. G2 में किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साइक्लिन ए का. साइक्लिन ए का कंसंट्रेशन ऐसा बढ़ गया. देखो, साइक्लिन ए कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड लाइक दिस इन G2 फेज. ठीक है, बट तुरंत गिर गया. प्रोफेज मेटाफेज होने के बाद किसका कंसंट्रेशन बढ़ा, और मेटाफेज होने के बाद हमको एम फेज में क्या होना, साइक्लिन बी, साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन बढ़ा. यहां आपको क्या समझ में आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, बाद में उसका कंसंट्रेशन तुरंत गिर जाते हैं. उसकी मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस साइक्लिन्स. अ स्पेसिफिक साइक्लिन विल बी सिंथेसाइज्ड एंड रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक साइट, G1 यस, G2M. उसके बाद उसका कंप्लीटली उसका साइक्लिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है,
फिर भी आप ये भी याद रखना, डिस्पाइट ऑफ द साइक्लिन्स कॉन्सेंट्रेशन, साइक्लिन डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन CDK हमेशा एक्टिव रहेगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जनरली इनएक्टिव रहते हैं। जब साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन्स मिलते हैं उसके साथ जोड़ने के बाद एक्टिव होता है। सो साइक्लिन dependent kinases are present in the cell of what of no use. When the particular cyclin, specific cyclin dependent kinase is attached by a specific cyclin, then only it will get activated and can control a particular stage of the cell cycle. Ultimately growth factor से transcriptional factor से cyclin synthesis हुआ, cyclin associate हुआ cyclin dependent kinases से, cyclin dependent kinases से रेटिनोब्लास्टोम या प्रोटीन प्लस EF2 को कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके EF2 कॉम्प्लेक्स विथ MPF माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर से जोड़ने के बाद ये माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर है, ये सेल डिवीजन के अंदर एक्टिव होता है। कौन सा सेल डिवीजन होना है? E2F प्लस MPF कॉम्प्लेक्स शुड बी एक्टिव। अगर ऐसा नहीं हुआ सेल डिवीजन नहीं दिखाते। हर एक जगह पे एक पर्टिकुलर साइक्लिन सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई थिंक you might have understood all these concepts related to cyclin dependent kinases and cyclins. Thank you very much for this listening this lesson. Thank you.